Assalamu alaikum. Lecture number 4 from the chapter number 2 of 9th class, that is solving a biological problem. If you have not subscribed my channel, go and subscribe my channel so that you can get the notifications of all my lectures. Okay, today's first topic is biological method. What is biological method? Biological method is the scientific method in which biological problems are solved is known as biological method. बच्चे हमने जो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये जो चैप्टर है इसमें हमने प्रॉब्लम्स को बेसिकली सॉल्व करना है। हमने देखना है कि जो साइंटिस्ट है, ठीक है, वो रिसर्च करते हैं, ये तो आपको सबको पता है, ठीक है। तो वो जो रिसर्च है वो हम क्यों करते हैं? हमारे पास जब कोई भी प्रॉब्लम होती है डेट इज़ रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेट इज़ solved by using the biological method. So that's why we are here we are going to study the biological method. So the scientific method in which biological problems are being solved is known as biological method, and it consists of many steps that the biologists have adopted to सॉल्व दी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बायोलॉजिस्ट जो हैं वो डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद वो क्या करते हैं, अपने जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाते हैं। And biological problem is those problems that are related to living organisms. Next topic is biological problem, hypothesis, deductions and experiments. So firstly is there are some steps to solve the biological problem, and these are 7 steps. Number 1 is recognition of biological problem. Number 2 is observation, then hypothesis, then deduction, experimentation, summarization of result and reporting of result. Number 1 is recognition of biological problem. Firstly we have to recognize that what is the problem. Okay, so biological problem can be any question that is related to living organism that is either asked by someone or comes in biologist mind by himself. कि बच्चे हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है। हमने देखना है कि वो प्रॉब्लम है क्या। अब वो जो प्रॉब्लम है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो एक क्वेश्चन भी हो सकता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट होकर, जाहिर बात है हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पढ़े तो बायोलॉजिकल में लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, और वो कहते हैं कि ये बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद से भी आ सकता है और कोई ऑर्गेनिज्म जो है या कोई और बंदा जो है वो भी बायोलॉजिस्ट से पूछ सकता है। And the second step is observations. In observations, we use 5 senses. Okay, we use 5 senses, and by using 5 senses we can make our observation, and these 5 senses are vision, hearing, smell, taste and टच। उसके अलावा ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं कि हम जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई पहले से ऑब्जर्वेशंस बनाई गई हैं, ठीक है, उनको रिकॉल किया जाता है, या फिर क्या है कि नई से नई ऑब्जर्वेशन बनाई जाती है। ठीक है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम है हम उसे ऑब्जर्व करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रही है, कैसे क्रिएट हो रही है। ठीक है, दीज आर ऑब्जर्वेशंस। Next is the types of observation. There are 2 types of observations. Number 1 is quantitative and number 2 is qualitative. Quantitative observation is considered more accurate as compared to qualitative. Okay, and because quantitative is invariable, measurable and can be recorded in terms of number. कि बच्चे quantitative observations जो होती हैं वो accurate हैं, क्यों? क्योंकि वो invariable means they cannot change, and these are measurable and can recorded in terms of numbers. कि quantitative observation जो है वो उनकी जो quantity होती है, उनका जो number होता है, ठीक है, वो क्या होता है, fixed होता है। For example, the freezing point of water is 0 degree and boiling point of water is 100 degree, while qualitative observations are variable and cannot measured in terms of number. कि quality जो है, जो qualitative observation है वो क्या है, variable means which can change with passage of time, and this cannot be measured in terms of number. And the example is the freezing point of water is colder than the boiling point. So here we have not used any number. Okay, that's why it is the qualitative observation. Next is the third step, that is the formulation of hypothesis. Formulation of hypothesis is done by using the observation. बच्चे जो हम ये हमारे steps हैं, ठीक है, these steps are solving to biological problem. We have to attempt all these steps by their sequence. Okay, biologist organizes observations into data form and then construct a statement. कि जो भी biologist ने अपनी problem से related observation बनाई है, that is second step. अब उस second step से हम क्या करेंगे, एक data लेंगे और एक statement बना देंगे। अब वो जो statement है वो सही भी हो सकती है और वो गलत भी हो सकती है। ठीक है, so this tentative explanation of observation, जो हमने observe किया है उससे जो हमने एक explanation बनाई है, ठीक है,
वो क्या है, टेंटेटिव है, और उसको कहते हैं डेट इज हाइपोथेसिस, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन विच कैन बी चेंज्ड। ओके, कि क्योंकि हम अभी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, हम उसे एक्सपेरिमेंट से चेक भी करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन से जो हम एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, टेंटेटिव, कि अगर हम उसे चेंज करना चाहें तो वो चेंज भी हो सके, एंड दिस इज द hypothesis. It is also defined as the proposition that might be true. This is the definition of hypothesis. Next is the characteristics of hypothesis. There are some characteristics, and this is also a short question. It should be a general statement. It should be a tentative idea. General statement के एक आम सी जो है ना अल्फाज उसके होने चाहिए, ठीक है. इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया विच कैन बी चेंज्ड. इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस. अगर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पहले से कोई ऑब्जर्वेशंस बनाई गई हैं तो वो उसके साथ क्या करे, रिलेट करे, ठीक है. इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, एंड इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सिफिएबल. बच्चे, हमने हाइपोथेसिस को आगे जाके हमने टेस्ट करना होता है, ठीक है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं. इसलिए कहते हैं कि हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, कि डेट शुड बी टेस्टेबल, कि हम उसको टेस्ट कर सकें, और अगर हम उसको फॉल्सिफिएबल, अगर वो गलत हो तो हम उसे गलत भी साबित कर सकें. ओके, नेक्स्ट इज द deduction, that is the fourth step. First one is the recognition of biological problem, then observations, that is quantitative and qualitative, then is the experiment, and number 4 is the deduction. Now deductions are made from the hypothesis. In this step biologist draws deductions from hypothesis, and deductions are the logical consequences of hypothesis. कि हमारे पास जो hypothesis थी उसकी लॉजिक क्या हम देखेंगे कि मीन्स के हाइपोथेसिस से हम ये कह सकते हैं दिस कैन बी एक्सपेक्टेड रिजल्ट. डिडक्शन क्या है, एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट, के हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो इस तरह का होगा, ठीक है. और हम डिडक्शन में बच्चे दो वर्ड्स यूज़ करते हैं, डेट इज़ इफ़ एंड देन, ठीक है. इफ़ एंड देन जो लॉजिक है वो बहुत यूज़ की जाती है डिडक्शन में. फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं ना कि हमारे पास हाइपोथेसिस है डेट प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है. क्या कह रहे हैं कि अगर मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम की वजह से काज हो रहा है, ये एक हाइपोथेसिस है, तो देन डिडक्शन विल बी इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव द प्लाज्मोडियम. तो इसमें हमने दो वर्ड्स यूज़ किए, इफ एंड देन, एंड दिस इज द डिडक्शन. और डिडक्शन में हम बच्चे दो ही वर्ड यूज़ करते हैं, इफ एंड देन का, एंड इट इज़ द एक्सपेक्टेड रिजल्ट. नेक्स्ट इज द फिफ्थ स्टेप, एक्सपेरिमेंटेशन. In experimentations, we perform experiments to check that if hypothesis is true or false, and experiment is the rigorous testing. कि अब जो हमारी जो प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड हमने पहले उसे सॉल्व रिकॉग्नाइज किया, फिर ऑब्जर्वेशन बनाई, फिर हमने हाइपोथेसिस बनाई, अब उस हाइपोथेसिस से हमने डिडक्शन बनाई. अब हाइपोथेसिस को हमने चेक करना है कि आइदर दिस हाइपोथेसिस इज ट्रू और फॉल्स, कि वो हाइपोथेसिस क्या है, वो सही है या गलत है, ठीक है. सो वी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द hypothesis. So if the hypothesis is true, then we accept the hypothesis, and if the hypothesis is false, then incorrect hypothesis is rejected, and accepted hypothesis makes further prediction that provide an important way to further test its validity. Next is the theory, law and principle. Now how theory is forms. बच्चे, हमारे पास कुछ स्टेप्स थे जिनको हमने फॉलो किया, और हमने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन, एक जो है वो अपनी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है. अब ये जो थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल है, इसमें क्या है कि जो हम किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस जो भी बनाई है उसको हम क्या करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट्स से गुजारते हैं, ठीक है, उसको टेस्ट करते हैं अगेन एंड अगेन, और अगेन एंड अगेन उसको उसी एक हाइपोथेसिस को टेस्ट करने से अगर वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होती, ठीक है, रिजेक्ट नहीं हो रही, वो क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है. सो दिस एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस दैट बिकम्स द थ्योरी. हमारे पास एक हाइपोथेसिस है, हम उसको क्या कर रहे हैं, बार बार टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि उसको चेक करने के लिए कि वो सही है या गलत है, ठीक है. उसको बार बार टेस्ट करने के बावजूद वो क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है, रिजेक्ट नहीं हो रही, ठीक है. देन इट बिकम्स द दैट दिस हाइपोथेसिस विल बिकम द थ्योरी. And next is the law and principle. Now the productive theory that has become by the hypothesis undergoes again testing, and that theory survives, that is supported by the experiment, then it becomes the law or principle. कि हमारे पास जो थ्योरी बनी है, ठीक है,
उसकी फर्दर हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। जैसे हम फर्दर टेस्टिंग करते हैं तो वो थ्योरी क्या करती है, सर्वाइव करती है। मीन्स कि वो जो थ्योरी है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है, वो प्रूव हो जाती है। तो और वो प्रूव किसके थ्रू हो रही है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो प्रूव हो गई है, तो देन दिस थ्योरी कन्वर्ज इनटू द लॉ और प्रिंसिपल, एंड देयर आर टू लॉज एंड प्रिंसिपल्स। एग्जांपल्स आर हार्डी-वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। Next, this is the diagram. Firstly, we have the biological problem. This is the first step. And second step is observations. We made observation by using our senses, 5 senses and our brain. And the third step is hypothesis. Hypothesis is simply by thinking the answer of our बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के जो भी हमारी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हम उसके बारे में सोचते हैं और एक स्टेटमेंट बना देते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर हाइपोथेसिस द फोर्थ स्टेप इज डिडक्शंस एंड डोंट मेक कंक्लूजन बट यूज इफ देन एंड प्लान एक्सपेरिमेंट। डिडक्शन बच्चे क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, उसके लिए हम 2 वर्ड्स यूज करते हैं, इफ एंड देन, ओके। और उसके बाद फर्दर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं। आफ्टर डिडक्शन वी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर आर 2 groups for experiments. Number 1 is experimental group and number 2 is control group. After experiment, then ultimately we have some result and that is the summarization of result. Okay, अब हमारे पास बच्चे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद क्या आ गया, रिजल्ट आ गया उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। अब वो अगर रिजल्ट क्या है, उस रिजल्ट में हाइपोथेसिस प्रूव हुई है, 2 ही कंडीशंस हो सकती हैं। या तो वो हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हुई है, मीन्स कि वो सही साबित हो गया। अगर सही साबित होगी तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर वो गलत साबित हुई है तो हम उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो अगर हमारा जो रिजल्ट है, इफ़ नॉट प्रूवन, हाइपोथेसिस इज नॉट प्रूवन, सो वी फर्दर go to the second position, second option, that is observation, and we made another observation and then another hypothesis। कि अगर हमारा जो रिजल्ट आया उसमें हमारी हाइपोथेसिस गलत साबित हो गई है तो हम वापस दोबारा सेकंड स्टेप पे चले जाएंगे, ऑब्जर्वेशन पे, और एक नई ऑब्जर्वेशन बनाएंगे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड और एक नई हाइपोथेसिस जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। बट इफ दैट हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड दिस हाइपोथेसिस हैज़ बीन proved, so we will report the results, and after reporting we will further go testing of that result, and further testing of result, if prove that hypothesis, then it becomes theory, and when theory is again testing, then it becomes a law or principle. Next topic is the data organization and data analysis. Data analysis and data organizations are also very important steps in biological problem. There is a definition of data. Data can be defined as the information such as names, dates or values made from observations and experiments. कि data क्या है बच्चे, हम किसे कह देते हैं, वैसे भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाटा वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो डाटा क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन होती है जो हम एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से हमें मिलती है, ठीक है। और ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ये नेम्स की फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, डेट्स की फॉर्म्स में भी और वैल्यूज़ की फॉर्म में भी। नेक्स्ट इज डाटा ऑर्गेनाइजेशन. In data organizations, we formulate and then test the hypothesis. Scientists collect and organize the data. बच्चे इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज, हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है ना, टेस्टिंग करनी होती है अपनी हाइपोथेसिस की, उससे पहले क्या करते हैं, अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और डाटा को कलेक्ट करते हैं, और डाटा कलेक्ट करने के कुछ मेथड्स हैं. देयर आर डिफरेंट डाटा कलेक्शन मेथड. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, ऐसा डाटा कलेक्शन इस तरह से भी हो सकती है कि आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, उसके लिए आपको डाटा चाहिए, वो आप खुद से कलेक्ट करें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी वो जो डाटा कलेक्शन है वो आपकी कोलीग या आपकी क्लास फेलो या आपकी कोई फ्रेंड है वो आपको करके दे रही है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है या जो आपको डाटा चाहिए वो आप पाकिस्तान में रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आपको वो डाटा पाकिस्तान से नहीं मिल सकता, ठीक है। वो आपको किसी और कंट्री से चाहिए, तो वो आपको आउट ऑफ कंट्री कोई सोर्स पर्सन जो है वो मेल करता है, ठीक है। सो दीज आर दी डिफरेंट collection methods, and data collection method ensures the quality of experiment, कि आपने कौन सा data collection method यूज़ किया है, ठीक है, ये आपके एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी को इंश्योर करता है. And data can be organized in 5 forms, that is number 1 is graphics, tables, flowchart, maps and diagram. अब कि इन सब फॉर्म्स में बच्चे आप अपने डाटा को जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और डाटा को शो कर सकते हैं. जैसे कि आप टेबल्स पढ़ते हैं, पीरियोडिक टेबल, या आप अपनी बुक्स में डिफरेंट आपके टेबल्स बने होते हैं, तो वो क्या है, उसमें एक डाटा ही होता है, इन्फॉर्मेशन ही होती है ना,
ठीक है। डायग्राम्स होती हैं, मैप्स होते हैं, फ्लो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट में जो सीक्वेंस चल रहा होता है, ठीक है। इसी तरह ग्राफिक्स भी एक पिक्चर की फॉर्म में जो डाटा शो हो रहा होता है। दीज आर द formats in which form data can be presented. Okay, next is the data analysis. We can analyze data by two forms. Okay, by using statistics. Number one is ratio and number two is proportion. Ratio is done by the use of quotient एंड प्रोपोर्शन बाय इक्वालिटी, कि हम दो तरह से करें, एक रेशियो है हमारे पास, एक है प्रोपोर्शन। रेशियो में हम बच्चे क्या करते हैं, क्वोशिएंट की फॉर्म लेते हैं, और प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, इक्वालिटी। सो लेट्स डिस्कस द रेशियो। हाउ when a relation between two numbers, that is a and b, is expressed in terms of quotient, it is called the ratio of one number to other. रेशियो क्या है कि जब हम हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं बच्चे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लें a एंड b, तो अब उनके दरमियान हमने क्या शो करना है, एक रिलेशन शो करना है, और वो रिलेशन किस फॉर्म में शो करते हैं, क्वोशिएंट के फॉर्म में। इसको हम कहते हैं रेशियो। एंड देयर आर टू मार्क्स बाय विच वी कैन एक्सप्रेस द रेशियो, दैट इज नंबर वन इज डिवीजन and number two is colon. Okay, and the example is the ratio between 50 malarial patients and 150 normal person is 1:3, कि सिंपली हम डिवाइड कर रहे हैं, रेशियो में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमारे पास 50 मलेरियल पेशेंट्स है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, 150 नॉर्मल पर्सन है, ठीक है। सिंपली हम डिवाइड कर देंगे, 51 are 50 and 53 are 150, so ratio is 1:3. This is the answer. Okay, next is the proportion. Proportion means to join two equal ratios by the sign of equality. proportion में बच्चे हम क्या करते हैं, जो हम पीछे रेशियो पढ़ के आए हैं उसमें proportion में हम वो दो रेशियोज को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, और सेंटर में क्या हमारे पास होता है, इक्वालिटी का साइन होता है। जैसे कि एग्जांपल देखें, A/B, ये हमारे पास एक रेशियो है, इज इक्वल टू C/D. सो देयर आर टू रेशियोज, A/B and C/D is second ratio. So we have joined both these ratios by the sign of equality, and this is the proportion. In proportion we have three values and we have to find out the fourth value, that is x. Okay, हमारे पास बच्चे तीन वैल्यूज जो हमें गिवन होती हैं, और फोर्थ वैल्यू को हमने प्रोपोर्शन में फाइंड आउट करना होता है। Let's have an example. A biologist can calculate how many birds will get malaria when he allows infected mosquitoes to bite 100 healthy sparrows. In the previous experiment, he noted that when he allowed mosquitoes to bite 20 sparrows, 14 out of them got malaria. एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले वो कह रही हैं कि 100 हेल्दी स्पैरोज हैं, उनको बाइट किया है एक मलेरियल इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि उनमें से कितने जो बर्ड्स हैं उनको क्या हो, कितनी स्पैरोज हैं जो उनको दे विल गेट द मलेरिया, कि वो उनको मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं उसके बाद एक और उसने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसमें 20 जो स्पैरोज थी उनको बाइट किया था मॉस्किटो ने, ठीक है। उनमें से जो 14 थे दे गॉट दी मलेरिया। सो देयर आर थ्री वैल्यूज आर गिवन, 100, 20 and 14. We have to find out the x, that how many birds will get the malaria from 100 healthy sparrows. Okay, so first ratio is 14:20, that is in blue. Okay, 14:20, 14 out of 20, कि 20 में से जो 14 sparrows थी they got the malaria. Okay, and the second ratio is x/100, मीन्स x हमने फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता कि कितने जो हमारे पास हेल्दी स्पैरोज है दे विल गॉट दी मलेरिया, ठीक है। So the proportion is joining the first ratio with second ratio. Okay, so first ratio is 14:20, proportion second ratio x/100. Now we will divide this ratio, x divided by 100. हम रेशियो की जो वैल्यू है, ठीक है, रेशियो को हम क्वोशिएंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मीन्स कि डिवीजन के फॉर्म में, ठीक है। सो हम यहाँ पे उसको डिवाइड से रिप्लेस कर देंगे, x divided by 100 is equal to 14 divided by 20. In next step, we will cross multiply all these values. X multiplied by 20 is equal to 14 multiplied by 100. Next further क्या होगा कि जो हमारे पास 20 है, ठीक है, डेट इज मल्टीप्लाइंग बाय x, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे और वो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 14। सिंपली हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एंड आंसर इज x इज इक्वल टू 70. सो इट मीन्स डैट 70 मलेरियल पेशेंट्स हैव गॉट द मलेरिया.
This is the second chapter of ninth class, solving a biological problem according to the smart syllabus. Okay, thank you.